Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this module, I'm going to discuss with you how to prepare for legal reasoning for your CLAT. I'm sure you must have watched our last video, that is how to prepare for English, that is reading comprehension, and we have actually analyzed the previous year's CLAT papers and given you a detailed understanding about what type of questions are being asked, what is the size of the reading material, कितने words पढ़ने चाहिए थे, कितना time available था, इन सब के ऊपर हमने बात करी थी. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि आप लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं. ठीक है, सो वी डिड नॉट डेल्व इनटू टू मच about the methods of solving it. Okay, today we are going to talk about legal reasoning. Many of the 10th standard students who are entering into the 11th standard must be, feeling new about this legal aspect. This is new for you. Yes, I understand. Okay, was it very complex? Definitely no. Is it very easy? Definitely no. So it's a moderate front. If you put right amount of efforts, you will be in a position to gain a good command over your legal reasoning. Remember, legal reasoning is an important area. क्यों important है? एक एक करके समझते हैं दोस्तों. ठीक है, average 25% questions are being asked in the CLAT examination are from legal, which is one of the highest number of questions wala section. ठीक है, there are two sections which will comprise of 50% of your paper. ठीक है, so CLAT में एक आपका GK एंड करंट अफेयर और दूसरा लीगल. सो दैट मीन्स लीगल के ऊपर ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण बात बन जाता है. एलेट में क्या लीगल आता है? एलेट में लास्ट ईयर डायरेक्टली लीगल के एक भी क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, देयर वर नो स्पेसिफिकली लीगल क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ठीक है, पर just like your CLAT, it is more based on reasoning. So ALET was also based on the reasoning. So in fact, CLAT has a legal reasoning section per se, but they are not asking questions on legal knowledge. ठीक है, however, there are some legal, concepts are needed in your CLAT, but in ALET it is not. However, reasoning remains same. Okay, whether it is CLAT or ALET, reasoning remains same. MHCET, Symbiosis, NMIMS के एग्जामिनेशंस, उनके अंदर लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं. भले वो फिर क्राइस का एग्जाम हो या NMIMS का एनलेट एग्जामिनेशन हो या सिम्बासिस का SLAT हो या महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस मिलाकर MHCET हो, वहाँ पे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सब में सेम तरीके के होते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं और उसके ऊपर से फैक्ट्स होते हैं. सो प्राइमरली अगर मैं आपसे बात करूं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि एलेट, MHCET, SLAT, एनलेट, इन सब में प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. एक प्रिंसिपल दिया जाता है, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट होगा उसके अंदर, और फिर उसी के ऊपर एक सिचुएशन देके रखी होगी और आपको वो लीगल प्रिंसिपल उस सिचुएशन में अप्लाई करना है. ठीक है, CLAT में बड़ा बदलाव है. So CLAT is not asking questions directly on the principle and fact. Yes, there are principles, but those principles are given in the big paragraph. ठीक है, you have to search for those paragraph में से वो principles, वो line पढ़ने हैं, which means they are giving you more, you can say, quantity of legal principles. They're not just giving you one legal principle, but they'll give you 3, 4 or 5 legal principles, and you have to actually apply those 4 to 5 legal principles in complex scenario of various facts provided. So one passage और उसके ऊपर से 5 questions, एक passage 5 questions. So आप समझ सकते हैं कि 5 अलग अलग तरीके के questions बन सकते हैं. So there is a possibility to provide some around 3, 4 or 5 different principles in one paragraph. However, all legal principles will be connected. ठीक है, because they have to provide paragraph will be connected to one idea. ठीक है, तो इसलिए CLAT में पैराग्राफ बेस्ड होता है और बाकी एग्जाम में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड होता है. ठीक है, अब इसकी तैयारी में क्या ध्यान रहे, हमने देखा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी क्वांटिटी के क्वेश्चंस आते हैं. क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? क्योंकि भैया लीगल में अगर आपने स्कोर किया तो अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स है तो लीगल रीजनिंग
टाई ब्रेकिंग सेक्शन गिना जाएगा फॉर गेटिंग अ रैंक। रैंक के लिए ये टाई ब्रेकिंग होगा। ठीक है, आप समझते हैं लीगल रीजनिंग चलता कैसे है। सो हाउ डू वी रीड दिस? सबसे पहली चीज है, आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा। प्रिंसिपल को पढ़े कैसे? जैसे आपके सामने बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ ड्रोन at a height in excess of 500 feet in a public place is guilty of nuisance. So there is a principle provided about a crime called nuisance. ठीक है, ओके, और some offense called nuisance. ठीक है, उसके बारे में बात है। वो न्यूसेंस कब बनेगा? ठीक है, तो दोस्तों लीगल लैंग्वेज में जनरली जिस तरीके के सेंटेंस दिए जाते हैं उन सेंटेंस में लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कहां पे ध्यान देना पड़ता है? लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड्स। क्यों लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है? बिकॉज वो कंडीशंस क्रिएट करते हैं, और कंडीशंस किस तरीके की अप्लाई होती है वो समझना है ना। जैसे अ पर्सन, सबसे पहला गिल्टी ऑफ न्यूसेंस किसके ऊपर लागू पड़ेगा? पर्सन के ऊपर, और कोई चीज के ऊपर नहीं। मतलब कोई लेट्स से मतलब रोबोट करेगा या कोई एनिमल करेगा, है ना, तो उसके ऊपर न्यूसेंस नहीं लगेगा। लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। क्या करेगा वो ह्यूमन बीइंग, तो उसको वो गिल्टी माना जाएगा। पहला, ही ऑपरेट्स अ ड्रोन। सबसे पहला वो तो ड्रोन ऑपरेट करना चाहिए। ड्रोन कैसे ऑपरेट करना चाहिए? एट अ हाइट ऑफ एक्सेस ऑफ 500 फीट। एक्सेस ऑफ 500 फीट तक चलेगा। 500 फीट के ऊपर अगर किया, ठीक है, ऊपर क्या किया? ड्रोन चलाया, दैट टू इन अ पब्लिक प्लेस। समझ रहे ना? 3 कंडीशन लग रही है, इनफैक्ट 4 कंडीशन। पहला, वो आदमी होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। नंबर 2, ठीक है, वो ड्रोन लगाना चाहिए। ड्रोन कहां लगाना चाहिए? एट अ हाइट इन एक्सेस ऑफ 500। एक्सेस ऑफ 500 का मतलब क्या? 500 चलेगा? हाँ चलेगा। 500 तक करना इज नॉट अ न्यूसेंस, ठीक है, पर 500 के ऊपर तो न्यूसेंस है। ठीक है, एंड दैट टू इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में 500 फीट तक करना इज न्यूसेंस। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, सो आप देख रहे हैं यहां पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन जो किया है, वो अंडरलाइनिंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, तो दोस्तों ये जो हम प्रूव करने वाले कि इस बंदे को न्यूसेंस हुआ या नहीं, या उसने न्यूसेंस किया या नहीं, तो हम कैसे अराइव करेंगे कि उसने न्यूसेंस किया या नहीं? तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है ना भैया? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या 3 पॉइंट थे? पहला, the person in the question should have been operating the drone. Number 2, that person should have operated the drone at a height in excess of 500. तो पहला आना चाहिए ड्रोन। What is the meaning of drone? Drone is unmanned aerial vehicle. Unmanned aerial vehicle. Yes or no? बराबर है। Unmanned एरियल व्हीकल है, बराबर, हवा में उड़ने वाला एक व्हीकल है, बराबर। कहाँ पे लगाया होना चाहिए? एक्सेस ऑफ 500। 500 या 500 से छोटा होगा वो नहीं चलेगा। एंड देन इट शुड हैव अकर्ड इन अ पब्लिक प्लेस। सो दोस्तों, फोकस ऑन द कंडीशंस प्रोवाइडेड। जब भी प्रिंसिपल्स पढ़ो उसके अंदर कंडीशंस क्या क्या देखे रखी है, प्लीज वहां पे ध्यान दीजिए। कंडीशंस आर ऑलवेज कैसे प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द वर्ड्स, और इसीलिए वो लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड्स है। एंड, और, देयरफॉर, हेंस, है ना, इन एडिशन टू दिस, डिस्पाइट दिस, इन स्पाइट ऑफ, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, वहां पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वो आपकी कंडीशंस को क्लियरली डिफाइन करते हैं। वो आपकी कंडीशंस को क्लियरली डिफाइन करते हैं। सो प्लीज डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई दोज की टर्म्स। उन की टर्म्स को ढंग से आइडेंटिफाई करोगे तो ये पक्का है कि आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी लीगल प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। सही है ना? ग्रेट। देन कम्स कि भैया ये समझना जरूरी है कि जो लीगल टर्म्स
दिए, प्रिंसिपल्स दिए, उनमें जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, वो आप अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो लाइफ आपकी मस्त है. जैसे यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंस दिया है. I will take some around, you can say 20-second pause, and you have to read this both the sentence, and you have to tell me what is the difference. Please tell me the difference in the comment box right now. I am taking 20-second off. आई होप इट इज क्लियर. आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया, वंडरफुल. ठीक है, समझिए दोस्तों क्या डिफरेंस था. यू मस्ट हैव फाउंड इट राइट. अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप सही में यहां पे एक वो जो छोटा सा पॉइंट था आप आसानी से ढूंढ पाते. पहला प्रिंसिपल बोलता है अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ ड्रोन एट हाइट इन एक्सेस ऑफ 500 फीट इन पब्लिक प्लेस इज गिल्टी ऑफ न्यूसेंस. चलिए अच्छी बात है. दूसरा, अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ ड्रोन एट हाइट इन एक्सेस ऑफ 500 फीट और इन अ पब्लिक प्लेस इज गिल्टी ऑफ न्यूसेंस. मतलब ये हो गया कि आप या तो ड्रोन 500 फीट के ऊपर उड़ा रहे हो, वो प्लेस कोई भी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आपने न्यूसेंस कर दिया है. या तो आपने ड्रोन 500 फीट पे नहीं उड़ाया है, आपने सिर्फ ड्रोन उड़ाया है इन अ पब्लिक प्लेस, तो भी आपने न्यूसेंस कर दिया है. समझ में आया ना. एक वर्ड किस तरीके से कहानी आपकी बदल रहा है. सही है ना. एक शब्द आपको यहां पे और लगा दिया और वो पूरा इंटरप्रिटेशन बदल रहा है. क्या आप इस तरीके के इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए मेंटली तैयार है? बिल्कुल, क्यों नहीं. बचपन से इसी बात की तो ट्रेनिंग मिली थी स्कूल में. हम ऐसी ट्रेनिंग कर पाए हैं ना, ऐसे छोटे छोटे शब्दों के ऊपर ध्यान दे पाते हैं. और जब अपने माता पिता के साथ अपन झगड़ा करते हैं तो यही तो शब्दों के ऊपर तो झगड़ा करते हैं कि पापा ने बोला था कि बेटा तू 12वीं में या 10वीं में ये करेगा तो तेरे को आईफोन दिलाएंगे. ठीक है, और तुमने वो किया पर पापा ने दिलाया नहीं, तो बोला कि पापा ने उस कंडीशन में से कुछ लूपहोल ढूंढी कि नहीं मैंने तो ये बोला था पर ये नहीं बोला था, है ना, या मैंने ये बोला था उसमें से तूने ये नहीं किया. कितने सारे झगड़े करते हैं अपन उस पापा मम्मी के साथ, है ना. तो भैया ये कहानी है तुम्हारी. समझ रहे हो ना बात को. क्लियर है. अगर समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में तो यस तो लिखो, है ना. सर को तो पता चले कि तुम दुनिया पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. अब जितना इंपॉर्टेंस, है ना, प्रिंसिपल्स में शब्दों का है उतना ही इंपॉर्टेंस, ठीक है, फैक्ट्स में शब्दों का है. थोड़ा सा ट्विकिंग इन द वर्ड्स विल चेंज द गेम. पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो. ठीक है, जैसे आपके सामने प्रिंसिपल है अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ ड्रोन एट अ हाइट इन एक्सेस ऑफ 500 फीट इन अ पब्लिक प्लेस इज गिल्टी ऑफ न्यूसेंस. फिर आपको फैक्ट दिया गया है राहुल टेक्स हिज ड्रोन टू अ पब्लिक मार्केट वेयर ही मीट्स हिज फ्रेंड शीला. शीला आस्क्स Rahul if she can fly the drone for a little while and he agrees. Sheila then takes the drone and flies it to a height of 600 feet and above in the market so she can get a panoramic view of the market. Is Rahul guilty of the offense of nuisance? क्या राहुल गिल्टी है? अब आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आप बोल दोगे यस यस राहुल गिल्टी है. अरे भाई शब्द पे ध्यान दो. किसने ये ड्रोन उड़ाया है? शीला ने. ड्रोन था किसका? राहुल का. राहुल का ड्रोन से फर्क नहीं पड़ता है. ड्रोन किसका है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल में ये नहीं दिया है कि ओनर कौन है. प्रिंसिपल में ये बोला है कि किसने उड़ाया है. यहां पे उड़ाया किसने? शीला ने. क्या राहुल गिल्टी है? आंसर इज क्लियरली नो. क्यों नहीं? बिकॉज ही डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. उड़ाया किसने था? शीला ने. किसकी परमिशन से? जिसकी भी परमिशन हो. यहां परमिशन की बात हुई थी क्या प्रिंसिपल में? ना जी, प्रिंसिपल में कोई परमिशन की बात नहीं थी. काम किसने किया? शीला ने. शीला ने किया तो कौन गिल्टी है? शीला. सवाल पूछा था इज शीला गिल्टी, तो आंसर चलता है यस. पर यहां पे सवाल शीला का नहीं पूछा था, सवाल पूछा था क्या राहुल गिल्टी है, तो राहुल तो नहीं है. क्लियर है ना भैया.
इजी है। सो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि आपको आपके प्रिंसिपल्स को भी ढंग से पढ़ना ज़रूरी है और आपके फैक्ट्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये सेशन के एंड में मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है, ये सेशन के एंड में आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना। इस पीडीएफ की प्रैक्टिस आपको करनी है, वो आपको मदद करेगा कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस की तैयारी करें कैसे, ठीक है ना। ये आपको एकदम अच्छे से तैयारी करवाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर that you understand your principles and facts carefully. Now, you may wonder, sir, how can I improve on my capability on principles? My dear students, you are not required to have a deep legal knowledge. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अभी हमने जो एक प्रिंसिपल दिया था न्यूसेंस के बारे में, लाइफ में कभी आपने न्यूसेंस नाम का कोई ऑफेंस सुना नहीं था तो भी कोई फर्क पड़ता क्या आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपको न्यूसेंस नहीं पता होता तो भी आप इस सवाल का आंसर तो दे पाते ना। सही बात बोल रहा हूं मैं। सो दोस्तों ये समझिए कि आपको जो न्यूसेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा या क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पूछा या टॉर्ट के बारे में कुछ पूछा या फैमिली लॉ के बारे में या कोई भी चीज के बारे में पूछा, यू शुड नॉट रियली बॉग डाउन बाय दोस, यू मस्ट जस्ट अप्लाई द रीजनिंग पार्ट ऑफ इट. And reasoning depends on your ability to read, understand, identify the logical connection given in the sentence. सही बात है ना? क्लियर है? ग्रेट. तो दोस्तों आपका कोई लीगल नॉलेज चेक नहीं हो रहा है, आपको लीगल नॉलेज में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है. हाउएवर यू मस्ट रीड दोस लीगल नॉलेज के सेशंस, फॉलो द वीडियोस, फॉलो द लेक्चर्स, रीड फ्रॉम द बुक. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों. जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उस क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ये एनालाइज करिए ध्यान से. दो चीज़ों का एनालिसिस आपको करना है ये सेशन के अंदर, ठीक है ना. क्या करना है? दो चीज़ों का एनालिसिस. पहला, अगर आप लीगल प्रिंसिपल्स को छोटे छोटे भागों में तोड़कर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. दोस्तों आपके अंदर फिर लॉजिकल रीजनिंग की कमी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. और उसके लिए क्लास के अंदर जब जब सर आपको कोई बड़ा बड़ा ज्ञान देते, कोई कोई टॉपिक के बारे में आपसे पूछते और बताते, आपसे जब सवाल पूछा जाता है कि बताइए आपका इसके अंदर क्या मानना है, तो आपको वहां रीजनिंग अप्लाई करनी है. या तो आप फंसे दूसरे में, that you are able to deal with principles easily, but you can't understand fact and situations properly. You are not able to understand the real issue properly. Then you have a problem of English comprehension. फिर किस चीज का प्रॉब्लम है दोस्तों? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है, ठीक है. देन यू मस्ट वर्क ऑन योर वोकेबुलरी, यू मस्ट वर्क ऑन योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया प्रोवाइडेड इन द फैक्ट. क्या हो रहा है जब कोई बंदा इंटेंशनली कोई चीज़ करता है या अनइंटेंशनली कोई चीज़ करता है, कैसे वो डिफाइन होता है कि वो इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया. आइडेंटिफाई दिस टू थिंग्स and start working on those. Remember, legal reasoning is more dependent on your logical and your reading comprehension rather than more on legal knowledge. समझ रहे बात को? आपके लीगल नॉलेज के ऊपर उतना फोकस नहीं है जितना फोकस आपकी रीजनिंग के ऊपर है और जितना ज्यादा फोकस आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है. समझ रहे बात को? ग्रेट. सो आपको चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच. तीन चीज एक साथ पढ़ाई करनी है. एक, हाउ टू रीड अ लॉ, दैट मीन्स आपकी रीडिंग कैपेसिटी. दैट मीन्स यहां पे आपका मतलब होगा लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है. क्या आप लॉ के प्रिंसिपल्स को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर हर एक पहलू को समझ पाते हैं, इंग्रेडिएंट को समझ पाते हैं? नंबर वन, दैट इज लॉजिकल. एंड ऑब्वियसली योर रीडिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स क्या आपको वोकेब समझ में आई, क्या आपको ग्रामर समझ में आया, ठीक है ना. क्या आपको जिस्ट मिला जो भी उन्होंने लिखा था उसका. देन यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल, ठीक है,
in the given factual situation. Now when you apply, you will get lot of, you can say, outputs. आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, बहुत सारा जजमेंट आपको मिलेगा कि हाँ ये बंदा गिल्टी तो है, पर क्यों गिल्टी है, ठीक है, विच इज द बेस्ट रीजन, ठीक है, विच इज द बेस्ट रीजन. मतलब आउट ऑफ गिवन रीजंस वन ऑफ द बेस्ट रीजन इज कौन सा, वो आपका आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. विच मीन्स इन तीन का जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वो रीजन की कैपेसिटी बनानी है. एक इंटेलिजेंट बच्चा ये लेवल डेवलप करेगा, एंड आई एम श्योर आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट तो है ही कि आप ये लेवल पे तैयारी करेंगे और ये लेवल पे आप पहुंचेंगे. सही बात है ना? कंफर्टेबल है सब लोग? ये बात आपको समझ में आ रही है? ग्रेट. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं. अब मैं आपके साथ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछले 4 सालों में 2020, 21, 22 और 23, इन 4 सालों में जब क्लैट ने पेपर कंडक्ट करा, ठीक है, तो उसमें अलग अलग एरिया से कौन कौन से क्वेश्चंस बने. ठीक है, आपको पता है एवरेज है ना, हर एक एग्जाम में देव आस्क्ड सम अराउंड 40 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 40. बराबर है, सम अराउंड 40 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चंस, 21 में 5, 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन के 15, 23 में 10 क्वेश्चन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा कांस्टेंट एरिया है और जो आता ही आता है. सो दैट मीन्स यू मस्ट प्रिपेयर वेल फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन. सही ना? और ज्यादा नंबर आते हैं भैया, कम नहीं आते हैं. इंडियन पिनल कोड, क्राइम के ऊपर कितने क्वेश्चंस? कभी 15 तो कभी 5, 5, 5. टॉर्ट के ऊपर 5, 5. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कभी 5, कभी 15, कभी कुछ भी नहीं. और मिसलेनियस इश्यूज विच इज फैमिली लॉ, आईटी रिलेटेड लॉस, मैं बताता हूं कौन कौन से और टॉपिक थे. ठीक है, तो ये आपको अलग अलग करंट अफेयर में जो चीजें चलती है उसके कंटेक्स्ट में. मतलब the examiner doesn't want you to have a lot of knowledge about law, but at least the examiner expects कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, पिनल कोड का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज क्राइम, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए. और उसके अलावा ये रहे आपके पास अलग अलग तरीके के टॉपिक्स. मिसलेनियस में उन्होंने पूछा था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आईटी के बारे में सवाल पूछे गए थे, इंटरनेशनल लॉ के बारे में सवाल पूछे गए थे, लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में सवाल पूछे गए थे, सरोगेसी लॉ के बारे में, ऑब्सिनिटी लॉ के बारे में पूछे गए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के बारे में सवाल पूछे गए थे. ये थे मिसलेनियस लॉस के ऊपर. बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनरली फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, रिट पिटिशन के ऊपर, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा के ऊपर, इंडियन पिनल कोड के ऊपर तो देखिए किस तरीके के, मॉब लिंचिंग, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, जनरल डिफेंसिस क्या है, बाइगामी क्या होती है, क्रूएल्टी किसको बोलते हैं. अब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वहां पे क्रूएल्टी के बारे में बहुत बातें होती है, महीने में 10 बार 12 बार तो बात हो ही जाती है. ठीक है, फिर टॉर्ट के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी. आप बोल सकते हैं कि सर ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं है. चिंता नहीं करिए आपको अगले कुछ महीनों में हम इसके लिए मास्टर बना देंगे. चिंता नहीं करिए, रेगुलरली सेशंस फॉलो करिए, अटेंडेंस रेगुलर रखिए, क्लास में ध्यान दीजिए. ठीक है, पक्का काम हो जाएगा. ठीक है, एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सब आपको पूछे गए थे. एक तरीके से पेपर कितने टफ थे. 2020 का पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे था. 2021 का पेपर वॉज वेरी इजी. दिस इज सेक्शन, लीगल सेक्शन की बात है, पूरे पेपर की बात नहीं है. ठीक है, 2022 का लीगल रीजनिंग वाज मॉडरेट, 2023 का मॉडरेट था पर बड़ा लेंदी था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. ठीक है, तो ये समझना जरूरी है क्या क्या एरिया से पैसेजेस आते हैं. ज़्यादातर न्यूज़पेपर के पार्ट से आते हैं. ठीक है, मिक्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के. और इसीलिए तैयारी कहाँ से चालू करें? तैयारी करने के लिए मेरा सजेशन बॉटम्स अप अप्रोच पे जाइए. सर व्हाट डू यू मीन बाय बॉटम्स अप अप्रोच? बॉटम्स अप अप्रोच बोलता है सबसे पहले फोकस उन चीजों के ऊपर करिए जो आपका लीगल का फंडामेंटल डेवलप करेगा. मतलब लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम्स आपको आनी चाहिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम,
टॉट, ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज आना चाहिए और ये पूरा करने में अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का टाइम आपको लगेगा. कितना टाइम लगेगा? 6 महीना. उसके बाद देन यू गो एंड टॉक अबाउट रिलीजियन बेस्ड लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सिविल लॉस, एनवायरमेंट रिलेटेड लॉस. ये आपको करीबन 3-1 महीने का टाइम लेंगे और फिर बाकी का पूरा समय आप करंट लीगल इश्यूज के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने में और जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज आएंगे उनको पढ़ने में ध्यान देंगे. इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है, जो भी आते हैं प्लीज उसको पढ़ने में ध्यान दीजिएगा. दिस इज वेरी क्रूशियल. समझ रहे हैं सब लोग? ग्रेट. ठीक है, तो ये तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये आपका अप्रोच होना चाहिए. आप बिल्कुल इन सब चीजों पे पहले जंप करोगे बगैर डेवलपिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. प्लीज ध्यान दीजिए, है ना. पहला आपका काम होगा फंडामेंटल डेवलप करिए. एक बार आपने फंडामेंटल डेवलप कर दिया आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी. सो व्हाट आर द टिप्स फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर लीगल रीजनिंग? सबसे पहली चीज, कंप्लीट ऑल टॉपिक्स. With every topic, complete at least 150 questions. Study legal concepts, legal terms, their definition, their ingredient. आपके लीगल एप्टीट्यूड की बुक के अंदर हमने बहुत डिटेल में ये सब चीजें देखे रखी हुई है. हर टॉपिक में हर छोटी छोटी चीज डिवाइड करी है, उसमें बहुत डिटेल में इंग्रेडिएंट दिए है. इंग्रेडिएंट को डिफाइन भी हमने टुकड़े टुकड़े में करके रखा है ताकि आप उन टर्मिनोलॉजी को पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड अ लॉ, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे. और इसलिए हमने काफी मेहनत से वो बुक बना के रखी है, प्लीज उसको फॉलो करिए. देन जो आपने 150 क्वेश्चन जब सॉल्व करे, आपके लर्निंग आउटकम को आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपको लीगल प्रिंसिपल समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्या आपको फैक्ट समझने में दिक्कत हो रही है, क्या आप उन फैक्ट में कहीं ढंग से चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. आइडेंटिफाई करिए, जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना. तो ये आपको बताएगा कि कमी किस जगह पे है और इंप्रूव कैसे करना है. रीड लीगल मटेरियल, लीगल न्यूज पढ़िए, इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट पढ़िए, केस समरीज पढ़िए, पुराने लॉस पढ़िए, पुराने लीगल जजमेंट्स पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. टेक सेक्शनल टेस्ट टू प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप इस माहौल में किस तरीके से ढल पा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और उस क्वेश्चंस के लिए आप क्या तैयारी कर पा रहे हैं. एनालाइज वेरियस लीगल सिनारियोस इन वेरियस लीगल सिचुएशंस. ठीक है, अलग अलग लीगल सिचुएशंस को समझिए. कभी कोई कॉम्प्लेक्स हो जाए चिंता नहीं करिए, डरिए मत, ठीक है, पर उसको समझने की कोशिश करिए. कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, उससे ज्यादा क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा. कोई इश्यू नहीं है, आसानी से समझेंगे, साथ में समझेंगे. देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्न द लीगल रीजनिंग टेक्निक्स. क्या टेक्निक्स हो सकती है? आपको एनालॉजी के द्वारा कि फलाने सिचुएशन में ऐसा हुआ था तो वे सेम ही सिचुएशन हम यहां पे जब अप्लाई करेंगे तो ये आउटकम आएगा. ऐसे करके आप रीजनिंग दे सकते हो. मैक्सिम्स के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि जनरली ऐसे कौन से मैक्सिम्स है जिसको जनरली दुनिया सही मानती है. जैसे नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस, और ऑडी अल्टरेम पार्टेम, दैट नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड ऑफ. इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं जो लीगल मैक्सिम में डिफाइन करे गए वो आपको याद रखने हैं, जो वहां पे यूज होंगे और वहां से आप रीजनिंग में आ पाएंगे. देन कम्स अ लीगल डिडक्शन, कैसे आप डिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, चीजों को कैसे स्ट्रॉन्ग वे में कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स to solve different types of legal reasoning questions and master it. दोस्तों ये है आपके लिए मेथड्स. अब इसके अलावा भी देयर आर अदर एरियाज, ठीक है, जो लीगल रीजनिंग का पार्ट नहीं है, वो मास्टरी करनी पड़ेगी तो जाकर लीगल रीजनिंग में हम अच्छे बनेंगे. बिल्कुल लीगल रीजनिंग सिर्फ लीगल रीजनिंग से थोड़ी होगा. यू मस्ट मास्टर द अदर एरियाज. कौन से एरियाज? 2 एरिया. 1,
enhance your reading comprehension skill, your ability to understand the scenario, the passage provided, the various scenario provided. ठीक है, you should be in a position to read those complex passages, identify the key information, draw right inference and right conclusion. Very important. And number 2, stay updated अबाउट द करंट अफेयर्स, ताकि वो करंट अफेयर की वजह से आपको इंपॉर्टेंट लीगल केसेस पता है, आपको जानकारी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा जब आपको ये पता होगा कि केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ था, मेनका गांधी के केस में क्या हुआ था, या अभी रिसेंटली सेना वर्सेस सेना के केस में क्या हुआ था. देन possibly that knowledge will give you lot of confidence when you are solving any kind of passages or any kind of questions. So ये दो एरिया है जहां पे आपको अपनी लीगल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग वे में इंप्रूव करना है. समझ रहे बात को दोस्तों? ठीक है. एंड देन सबसे आखिरी टिप फ्रॉम माई साइड इज ऑलवेज सीक गाइडेंस. इफ यू कम अक्रॉस टू एनी चैलेंजिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग टेक्निक, go and meet your teacher and identify what is a reasoning. ठीक है, what is a method, what is an interpretation of this word, what is the idea about this entire principle. Please टीचर से पूछिए. You can join ProTalent. ProTalent will help you with all your small details. Regularly we train you for this activity. ध्यान रहे दोस्तों, आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे. ठीक है, तो मेरी तरफ से ये आज का एक सेशन जो लीगल रीजनिंग की ओरिएंटेशन के लिए था. क्या आपको ये सेशन पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करिए. हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके फीडबैक भी दीजिए कि सर हमें ये भी जानना है, सर आप ये भी बताइए, सर आप ये वो भी बताइए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट योर फीडबैक सो दैट आपको जो पसंद होगा वो मैं चीज़ आपके लिए बना पाऊंगा. ठीक है, कल हम मिलेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द सेशन ऑन लॉजिकल रीजनिंग, how to improve logical reasoning for CLAT. I hope this is comfortable. Thank you very much for joining with me and all the best.